Hello students, now our next topic of chapter 1, evidence-based medicine. This topic is mainly for doctors, means who prescribe the medicines. Doctors should know about the present scenario of medicines, means which medicine is banned, which medicine cause more side effects and which medicine is not effective in present time. If a doctor study about the medicine before 5 to 7 years, like antibiotics, ciprofloxacin, ofloxacin, but nowadays they are not effective on particular population. तो अगर किसी डॉक्टर को एंटीबायोटिक्स के बारे में पता है जो चली आ रही है ट्रेडिशनल तरीके से काफ़ी लंबे टाइम से, लेकिन अब वो एंटीबायोटिक्स इतनी इफ़ेक्टिव नहीं हैं और अब उनके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हो रहे हैं, यानी इतने पर्टिकुलर पॉपुलेशन के ऊपर ये टेस्टिंग करने से पता लगा है कि उन एंटीबायोटिक्स के साइड इफ़ेक्ट्स बढ़ रहे हैं. So, doctor should know about this present scenario, and evidence-based medicine help to the doctor to choose right medicine and lower side effect medicines for patient. Now the definition of evidence-based medicine. It is the process systematically finding, evaluating, using research to finding the basis of clinical results of trials for disease management. Means it is the systematically process finding, evaluating and using research. First, the finding about medicine history, medicine scenario in present time, and evaluation of medicines, some changes in medicines to lower side effect, to decrease the side effects. It is the process systematically finding, evaluating, using research. Means systematically finding the medicine condition, medicine history, medicine present condition and the side effects of medicines on particular population. Evaluating means evaluation in medicine. Some changes we should do in the medicine to decrease the side effects and improve the effect of medicines. Using research. Research means publicly trial, clinical trial, preclinical trial and clinical trials. That helps us to know about the condition of medicines in human body and the side effects and effectiveness. To finding the basis of clinical results of trials. मीन्स आई सेड दैट प्री क्लिनिकल एंड क्लिनिकल ट्रायल्स की बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि वो मेडिसिन की इफ़ेक्टिवनेस, उसके साइड इफ़ेक्ट्स कैसे हैं. फॉर डिजीज़ मैनेजमेंट, डिजीज़ को मैनेज करने के लिए, डिजीज़ को क्योर करने के लिए एक डॉक्टर के पास में डॉक्यूमेंटेड एविडेंस होनी चाहिए, प्रैक्टिकली प्रूव होना चाहिए कि ये मेडिसिन इस डिजीज़ के लिए इफ़ेक्टिव है और ये मेडिसिन इस डिज़ीज़ को क्योर करने के लिए इफ़ेक्टिव है. एक डॉक्टर के पास में डॉक्यूमेंटेड प्रैक्टिकली क्लिनिकल ट्रायल्स के बेसिस पे ये प्रूफ होना चाहिए कि ये मेडिसिन इस डिज़ीज़ को क्योर करने के लिए इफ़ेक्टिव है. प्रूफ मीन्स एविडेंस एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन्स मीन्स प्रूव्ड medicines, means we are sure about this medicine and we can prescribe this for patient. एविडेंस बेस्ड मेडिसिन्स थेरापेटिक इवैल्यूएशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. मीन्स इफ़ अ डॉक्टर प्रिस्क्राइब अ ड्रग फॉर एनी डिजीज़, सो हाउ कैन ही चूज़ द बेस्ट ड्रग फॉर हिज पेशेंट. उसको कैसे पता चलेगा कि कौन सी ड्रग, कौन सी मेडिसिन बेस्ट है उसके पेशेंट के लिए. बिकॉज एक डिजीज़ के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन प्रेजेंट है. मीन्स इफ़ वी टेक एग्जाम्पल like anti-asthmatic drugs. Anti-asthmatic drugs में salbutamol, terbutaline, ephedrine, different types of drugs present है. So how can we decide the best medicine for our patient? So evidence-based medicines help us to decide the best medicine for your patient. Like therapeutic evaluation of drug includes quantity of drug can decide by doctors.
डॉक्टर्स डोज डिसाइड कर सकते हैं, क्वांटिटी डिसाइड कर सकते हैं। एज वी नो चिल्ड्रंस के लिए क्वांटिटी अलग होती है। Therapeutic evaluation of a drug includes quantity of drug can decide by doctors. डॉक्टर्स क्वांटिटी डिसाइड कर सकते हैं, डोज डिसाइड कर सकते हैं। लाइक चिल्ड्रन के लिए डोज अलग होगी एंड एडल्ट के लिए डोज अलग एंड ओल्डर पेशेंट्स के लिए डोज अलग होगी। वो एविडेंस बेस्ड से डिसाइड किया जा सकता है कि कितनी क्वांटिटी ऑफ ड्रग ज़रूरी है पेशेंट के लिए। सेकेंड इज़ द बेस्ट वे फॉर डोजेज एंड ड्यूरेशन। डोजेज कौन सा वे, कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन, विच टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज़ बेस्ट फॉर पेशेंट, लाइक ऑरल, एनल। Second is the best way for dosage and duration, means which type of administration, which type of dosage form is the best for the patient, and duration means timing, कितने टाइम तक वो मेडिसिन पेशेंट को देनी है। थर्ड इज कंपैरिजन अमंग अवेलेबल ड्रग्स। मैंने जैसा आपको बताया एंटी एस्थमेटिक का एग्जांपल देखिए, साल्ब्यूटामोल, टर्ब्यूटालिन, एफेड्रिन, various type of anti-asthmatic drugs are available. So how can we decide the best medicine for our patient? Then comparison among available drugs. Comparison किया जाता है available drugs में से कि किस में side effects कम है, किसकी effectiveness ज़्यादा है, और patient पे भी depend करता है कि पेशेंट को इससे एलर्जी ना हो, पेशेंट पे ये इफ़ेक्टिवली वर्क करे, और ड्यूरेशन कम टाइम में ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो। ऐसी मेडिसिन को चूज़ किया जाता है टू मैनेजमेंट एनी डिजीज़। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के डेटाज मिलते हैं क्लिनिकल स्टडीज़ से। इसमें है क्लिनिकल ट्रायल्स, कोहॉर्ट स्टडीज़ एंड केस कंट्रोल। क्लिनिकल ट्रायल्स में हम इवैल्यूएशन से पहले, डिस्कवरी से पहले हम ये ट्राई करते हैं ह्यूमंस पे, एनिमल्स पे, कि मेडिसिन के इफ़ेक्ट्स कैसे हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स दो टाइप के होते हैं, प्री क्लिनिकल ट्रायल्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स। क्लिनिकल ट्रायल्स से हम ये डिसाइड करते हैं कि जो मेडिसिन है उसका इफ़ेक्ट कैसा है। ये हम ट्रायल्स करते हैं एनिमल्स पे, ह्यूमंस पे, तो हम ये देखते हैं कि इनके साइड इफ़ेक्ट्स कैसे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज़, एपिलेप्सी कंडीशंस या और कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है उस मेडिसिन से। ये हम ट्राई करते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स में। क्लिनिकल ट्रायल्स दो टाइप के होते हैं, प्री क्लिनिकल ट्रायल्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स। प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में एनिमल्स पे स्टडीज़ की जाती है, लाइक पिग्स, रैट्स, इन पे स्टडी की जाती है। पायरोजन टेस्टिंग, एपिलेप्सी कंडीशन टेस्टिंग वो एनिमल्स पे की जाती है। उनके टेम्परेचर या साइड इफ़ेक्ट्स देख के ये पता लगाया जाता है कि इस मेडिसिन के इफ़ेक्ट्स कैसे हैं। एंड क्लिनिकल ट्रायल्स में ह्यूमन पे स्टडी की जाती है, यानी एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे स्टडी की जाती है कि उस मेडिसिन का इफ़ेक्ट कैसा है। ऐसे ही क्लिनिकल ट्रायल्स 4 फेजेस में होते हैं, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज एंड फोर्थ फेज। फर्स्ट फेज में 3 to 5 पेशेंट पे चेक किया जाता है मेडिसिन का इफ़ेक्ट, कि उस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स कैसे हैं, उस मेडिसिन की इफ़ेक्टिवनेस कैसी है, ड्यूरेशन कैसी है, वो डिसाइड की जाती है 3 to 4 पेशेंट पे चेक करके। सेकंड में 200 to 500 हेल्दी पीपल पे डिसाइड किया जाता है, टेस्ट किया जाता है मेडिसिन का, कि उस मेडिसिन की इफ़ेक्टिवनेस कैसी है, साइड इफ़ेक्ट्स कैसे हैं। थर्ड में पर्टिकुलर पॉपुलेशन पे ये डिसाइड किया जाता है कि ऑल ओवर रिज़ल्ट कैसे हैं और मैक्सिमम इफ़ेक्टिवनेस या फिर मैक्सिमम साइड इफ़ेक्ट्स, मैक्सिमम इफ़ेक्ट ऑफ मेडिसिन क्या है। एंड फोर्थ क्लिनिकल ट्रायल, फोर्थ फेज़ का जो क्लिनिकल ट्रायल है उसमें मार्केट में मेडिसिन के आने के बाद चेक किया जाता है कि कोई ऐसा एविडेंस, कोई ऐसा एविडेंस या फिर कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट सामने नहीं आया जो प्री क्लिनिकल या क्लिनिकल ट्रायल्स में नहीं देखा गया।
वो कहीं अब तो नहीं देखा जा रहा पॉपुलेशन में, तो ये मार्केट में मेडिसिन के आने के बाद डिसाइड होता है क्लिनिकल ट्रायल्स में, 4th फेज में। ओके, क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद है कोहॉर्ट स्टडीज़। कोहॉर्ट स्टडीज़ में 2 टाइप के स्टडीज़ होती है, रेट्रोस्पेक्टिव्स एंड प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव्स में 20 to 50 पीपल पे ये टेस्टिंग की जाती है कि एडवर्स ड्रग रिएक्शंस ADR, किसी मेडिसिन के, पर्टिकुलर मेडिसिन के एडवर्स ड्रग रिएक्शंस ADR क्या है उस पेशेंट पे, 20 to 50 पेशेंट्स पे ये स्टडी की जाती है। बट रेट्रोस्पेक्टिव्स में कोई डिफाइन या कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, कोई फिक्स पॉपुलेशन नहीं है। इसमें कंप्लीट विलेज या टाउन, एक बड़ी पॉपुलेशन पे ट्रायल्स किए जाते हैं और ये चेक किया जाता है कि मेडिसिन के एडवर्स ड्रग रिएक्शंस ADR कैसे हैं, मीन्स मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स और उसकी इफ़ेक्टिवनेस चेक की जाती है। लास्ट 3rd इज़ केस कंट्रोल। केस कंट्रोल में पर्टिकुलर पर्सन पे ये चेक किया जाता है कि इस पर्सन पे अलग साइड इफ़ेक्ट्स कैसे दिख रहे हैं। अगर एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन में से किसी एक पर्सन पे ही साइड इफ़ेक्ट है या फिर उसी की बॉडी पे उस मेडिसिन का असर अलग हुआ है, तो उस केस कंट्रोल में उस पेशेंट पे अलग अलग टेस्टिंग की जाती है, अलग अलग मेडिसिन्स चेक की जाती है कि प्रॉब्लम मेडिसिन में है या फिर पेशेंट की फ़िज़िकल कंडीशन या फिर पेशेंट की रिस्पॉन्डिंग कंडीशंस में है कि वो रिस्पॉन्ड अलग कर रहा है। तो ये केस कंट्रोल में सिर्फ पर्टिकुलर एक पर्सन पे कि ये इसमें डिफरेंस क्यों है, बाकी सबसे इसमें साइड इफ़ेक्ट्स क्यों अलग आए हैं, वो डिसाइड किया जाता है केस कंट्रोल में। तो ये थे क्लिनिकल स्टडीज़, जिसमें क्लिनिकल ट्रायल्स, कोहॉर्ट स्टडीज़ एंड केस कंट्रोल है, जो हमें एविडेंस बेस्ड मेडिसिन में डेटाज देते हैं, जिससे हम ये डिसाइड करते हैं कि इस मेडिसिन की इफ़ेक्टिवनेस हमें इन एविडेंस के बेस पे प्रूफ होती है। एंड नाउ आई एम श्योर टू प्रिस्क्राइब दिस मेडिसिन टू एनी पेशेंट। एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट। Essential medicines are the medicines which people should have access at all time and they should be at the affordable price. Essential medicines हमारे लिए ज़रूरी है, like जो medicines हमें almost any time कैरी करनी होती है, जिनकी ज़रूरत almost सबको पड़ती है, जो नॉर्मल बीमारियों की, नॉर्मल डिजीज़ की मेडिसिन होती है। लाइक एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में हमें वो मेडिसिन मिलती है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हमें कम प्राइस में या फ्री में जो मेडिसिन प्रोवाइड होती है, वो सभी एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में आती है। दे इम्प्रूव आवर हेल्थ बाय इंश्योरिंग द क्वालिटी, एफिकेसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ medicines. According to the WHO, essential drugs are the drugs that satisfy the priority healthcare needs of the population. Means पॉपुलेशन के हेल्थ केयर नीड्स में जिन मेडिसिन की प्रायोरिटी है, जिन मेडिसिन की कंपल्सेशन है, जिन मेडिसिन की नीड्स सबको होती है, वो सभी मेडिसिन आती है एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में। एंड गवर्नमेंट वो मेडिसिन हमें फ्री में या अफोर्डेबल प्राइस में प्रोवाइड कराती है ताकि हम इजीली ट्रीटमेंट कर सकें। एसेंशियल मेडिसिन क्या होता है ये हमने जान लिया। अब इसके बाद है एसेंशियल मेडिसिन के सिलेक्शन किस बेसिस पे होते हैं। सिलेक्शन ऑफ एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट। अकॉर्डिंग टू द WHO, 2 criteria has laid down by WHO. Availability of satisfactory information means availability of satisfactory information of drug, its effectiveness, its safety, stability by the clinical trials. means clinical trial से ये proof हो सकता है and proof हो चुका है कि ये drug safe है, effective है। ये WHO के अकॉर्डिंग क्राइटेरिया है किसी भी एसेंशियल मेडिसिन को सेलेक्ट करने के लिए। सेकंड इज अवेलेबिलिटी ऑफ द क्वालिटी ऑफ ड्रग। मीन्स क्वालिटी ऑफ ड्रग प्रेजेंट है, इसका हमें एविडेंस मिल चुका है क्लिनिकल ट्रायल से।
वो ही एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में आएंगे जिनकी क्वालिटी प्रूफ्ड है एंड दैट कैन बी स्टोर्ड फॉर लॉन्ग पीरियड. दैट टाइप ऑफ मेडिसिन्स आर एडेड इन एसेंशियल मेडिसिन्स. स्टोर भी उनको लंबे टाइम तक किया जा सकता है, उनको स्टोर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनमें किसी भी तरह का कंटामिनेशन या किसी भी तरह की कोई दूसरा फॉरेन पार्टिकल्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, उन्हें स्टोर इजीली किया जा सकता है. दैट मेडिसिन्स इंक्लूडेड इन एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट. द इंडियन गवर्नमेंट रिलीज्ड 39 drugs of essential medicine list according to the National List of Essential Medicines, which was released in 2021. Like anti-cancer, anti-diabetic and antiretrovirus drugs are added in this list. Some essential medicine list drugs I am showing you. 39 ड्रग्स में से अगर आप ये 6 to 7 ड्रग्स भी याद करते हैं अपने एग्ज़ाम्स के लिए, सो इट इज़ इनफ फॉर यू. लाइक एमिकासिन एंटीबायोटिक्स, एजासिटिडीन एंटी कैंसर, इट्राकोनाजोल दिस इज़ वेरी कॉमन फॉर एंटी फंगल, इवरमैक्टिन एंटी पैरासाइटिक, मोनिल्यूकास एंटी अस्थमेटिक, मोनिल्यूकास, ज़फिरल्यूकास, these Lucas type of drugs from anti-asthmatic, bedaquiline from anti-TB. These 5 to 7 drugs from essential medicine list you can add in your answer. After the essential medicine list, the last topic of this chapter, STGS, Standard Treatment Guidelines. These guidelines are for prescribers who prescribe the medicines to the patient. These guidelines help to the prescriber to select the best medicines and effective medication to cure any disease and lower side effects. These guidelines help to the prescriber to ensure the clinical based trials and safety of drug. Standard Treatment Guidelines (STGs) are systematically developed statements designed to assist prescribers in making decision about appropriate health care. Means these are systematically developed statements. These statements are systematically developed according to the preclinical, clinical trials and other case studies. उनके बाद ये डेवलप किए जाते हैं स्टेटमेंट्स जिनके एविडेंस हमारे पास है कि ये स्टेटमेंट्स किस एविडेंस पे बेस्ड है, और वो स्टेटमेंट्स असिस्ट करते हैं प्रिस्क्राइबर्स को जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट को. यानी उन स्टेटमेंट्स की मदद से प्रिस्क्राइबर ये डिसीजन ले सकते हैं कि ये मेडिसिन इस पेशेंट के लिए सही है या नहीं. इन मेकिंग डिसीजन अबाउट एप्रोप्रिएट हेल्थ केयर मीन्स किसी भी डिज़ीज़ को क्योर करने के लिए, किसी भी डिज़ीज़ के ट्रीटमेंट के लिए कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी चाहिए, उनका डिसीजन लेते हैं इन स्टेटमेंट्स की हेल्प से प्रिस्क्राइबर मीन्स डॉक्टर्स. आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ STGs, नाउ की फीचर्स ऑफ सक्सेसफुल STGs मीन्स कौन कौन से फीचर्स एक सक्सेसफुल STGs में होने चाहिए. सिंप्लिसिटी, क्रिएटिबिलिटी, रेगुलर अपडेटिंग, ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड फॉर ऑल लेवल ऑफ हेल्थ केयर, medicine supply based on standard. Simplicity means the common health care problems which are seen in commonly in people. मीन्स लोगों में जो कॉमनली दिखाई देती है, जो लिमिटेड हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स है, उनके अकॉर्डिंग STGs बनाई गई है. क्रिएटिबिलिटी, क्रिएटिबिलिटी मीन्स जो STGs में गाइडलाइंस है, जो स्टेटमेंट्स STGs में दिए गए हैं, वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड क्लिनिशियंस के द्वारा दिए गए हैं जिन्हें एक्सपीरियंस है उन मेडिसिन पे वर्क करने का, उनसे पेशेंट को ट्रीट करने का. तो क्रिएटिबिलिटी मीन्स जो STGs की गाइडलाइंस है वो एक्सपीरियंस्ड, एस्टीम्ड, क्वालिफाइड क्लिनिशियंस के द्वारा दिए गए हैं. रेगुलर अपडेटिंग, रेगुलर अपडेटिंग मीन्स अगर किसी मेडिसिन से बैक्टीरिया ने रेजिस्टेंस बना ली है या फिर अब
उस मेडिसिन की इफ़ेक्टिवनेस चेंज हो गई है तो उसकी अपडेटिंग भी SDGs में इंक्लूड होनी चाहिए। या अगर किसी मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हो रहा है और उसकी इफ़ेक्टिवनेस कम हो गई, या फिर a large amount of people are affected by adverse drug reactions, then SDGs should be changed. Treatment standard for all level of health care. जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है वो सभी हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स के लिए कॉमन होगा, और ट्रीटमेंट लेना या नहीं लेना ये पेशेंट की चॉइस होती है। अब आप उससे ज़बरदस्ती ट्रीटमेंट नहीं दिला सकते। पेशेंट अपने हिसाब से चूज़ करेगा कि उसको ट्रीटमेंट लेना है या नहीं लेना। तो फर्स्ट पेशेंट की परमिशन, एंड सेकंड जितने भी स्टैंडर्ड है वो सभी पेशेंट के लिए इक्वल होंगे। मेडिसिन सप्लाई बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड। मेडिसिन जो सप्लाई होगी वो स्टैंडर्ड पे बेस्ड होगी। मींस जितने भी स्टैंडर्ड डिसाइड हुए हैं उस मेडिसिन के लिए, जो क्लिनिकल ट्रायल्स और प्री क्लिनिकल ट्रायल्स के बेसिस पे है, उसी के अकॉर्डिंग मेडिसिन सप्लाई होगी। और मेडिसिन सप्लाई के जो स्टैंडर्ड है उसमें उनकी अफोर्डेबल प्राइस भी इंक्लूड है, यानी वो पॉकेट फ्रेंडली होना चाहिए। पेशेंट कैन अफोर्ड दैट मेडिसिन ईजीली। So these are the key features of successful SDGs. Now this chapter has completed, and in next video we will start the next chapter. Okay, thank you students.